Hi Neil, how are you doing? Very well, Alice. How are you? I'm also good. So how's your work going on? It's been good. Work's been well, and we're very excited to be now advertising on social media, to be putting out content that people might like. Yeah, that's that. That's great. So can you just give us a quick intro about your factory and what you specialize in? Sure. So we are Rajdhani Textile, and our brand's name is Rajdhani Carpets, and we specialize in a lot of non-woven needle punch products. Okay. Most popular of which being carpets. So as we can see today in our factory all around with our machinery, we make a lot of needle punch products. So you have carpets, you have geo bags, you have quilts, polyfills, cushions, all of that. Okay. So can you tell us about the process that is going on right now? Sure. So as we can see around the factory today, we start with getting our raw materials, and then there's a line of machinery that goes into separating them from the bales that they come in. उसके बाद वो process में जाते हैं. The reason we call it needle punch is because we don't weave the fabrics together. That's why it's also called non-woven. Okay. So basically the process is that the fiber goes through this line of machinery which has a lot of nails, a lot of needles, very thin needles Okay. that punch the fabric very fast. It's like, I think in the blink of an eye, it happens 10 times. That the whole bed of nails punches the fabric really fast and that binds it together. Okay. So before it goes into the punching, you can always pull it and separate it. But once it's punched out, then you'll see that you won't be able to separate the fabrics. Okay. So all around us today, you can see the machinery. Over there, that's where the fiber goes in the first place. Okay. You can see a bag of fiber over there. Right. That will be put into the machinery, and that goes into this very interesting bit of. So this is our first line. This is line 1, as we call it. यहाँ पे, as you can see, there is a conveyor that's made of bamboo, Right. so that the fiber it doesn't slip, and it has enough friction, and it gets separated over here, goes into this conveyor, then it gets carried through tubes of metal and air over to the next machinery, Okay. and you can see the laying process is happening. Right. That's the carding process. So there's a lot of interesting processes that happen, and after that, the punching is happening right here. So if you want to see here, and you can pick the camera if you want. Over here, you can see the bed of nails going really fast and punching. Okay, so these are the needles you were talking Yeah, about. exactly. Okay. So over here, the nails are punching from the bottom. Right. Then in the next bit, in that part, they're punching from the top. So it happens on both the sides, Okay. and then you can see what's coming out. It's very surreal. It's very magical to see these fibers like these come alive and essentially become what we can see right here. Really fun. Right. So that's basically what happens on the ground. Okay. Okay, so Neil, how are your carpets and wall fills different from what's already in the market? बेसिकली हम लोग बहुत सारे एग्जीबिशंस में भी गए हैं, हम लोग बहुत टाइम से इंडस्ट्री में भी हैं, तो एक तरीके से मार्केट रिसर्च हमेशा चलती ही रहती है. जितने भी इवेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स, एग्जीबिटर्स, सब लोग फीडबैक देते हैं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी डिफरेंशिएट इज आवर डिजाइनिंग. जो हमारे कारपेट्स और वॉल फिट्स की प्रिंट्स की डिजाइनिंग है, वो ऑल ओवर इंडिया और किसी के पास नहीं मिलेगी. जो फाइननेस है और जो हम टाइम स्पेंड करते हैं एक एक डिजाइन पे. व्हेनेवर अ कस्टमर वांट्स अ वॉल फिट इन देयर ओन कस्टम साइजेस, तो हमारे डिजाइनर फिर से बैठ के उन सब डिजाइन्स को दोबारा बनाते हैं उन साइजेस के हिसाब से. बिकॉज वी सीन लॉट ऑफ प्लेसेस दे don't really pay attention to the print quality. So it's like if someone had a design that was designed for originally a 5 feet width, वो उसी को 12 में भी expand कर देते हैं, and then anyone can see कि वो बहुत pixelated है, Right, या बहुत blurred है. Color smudge भी हो जाता है. Exactly. Right. It doesn't look that good, especially when you take photos in front of it, which is the whole purpose. Right. And our designing. Another thing why people love to do business with us is because of our customer service. We really try to go above and beyond.
वी ट्राई टू मेक इट एज इंफॉर्मेटिव, जितना हम अपने कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली हमने लिखा है यूज नो हुक्स, Okay. ताकि हमारे कस्टमर्स को पता हो कि कारपेट में छेद नहीं करना। Okay. तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको बता सकें, Right. हाउ टू अप्लाई, हाउ टू रीयूज, हाउ टू वॉश, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। Okay. That's great. So मतलब आप पहले ही इन्फॉर्म कर देते हो कस्टमर्स को कि इसको ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। जी, एग्जैक्टली। एंड Great. so it goes both ways, you know, our customers have been really great, उन्होंने इतने सारे हमको आइडियाज दिए हैं अच्छे अच्छे, एंड वो हमारी हेल्प करते हैं। they take very nice photos for us, they tell us क्या इनोवेटिव चीजें हम और इसमें ऐड कर सकते हैं या डिजाइनिंग, they tell us obviously कि उनके सेगमेंट्स, उनके मार्केट्स में क्या डिमांड्स हैं, किस टाइप की डिजाइन्स लोगों को पसंद है। तो that way building that relationship with the clients is very very essential. Right. So like does it ever happen कि suppose किसी client ने आपको डिजाइन बताया, obviously आपने customize किया, so like do you keep that collection also? एक customization का भी collection अलग से रखना? Of course we do. We save all drafts that we make. Okay. There are a lot of times when clients have some confidential designs that they do not want anyone else to have. Okay. So we don't share those with anyone else as well. ठीक है. क्योंकि कुछ लोगों को अपने इवेंट्स की, एग्जीबिशंस की एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी होती है। Exactly. So then it's very important that we don't share those designs with anyone, Okay. which we obviously do. हम उनको confidential रखते हैं। एंड जितने भी डिजाइनिंग चेंजेस हैं, सो वेरिएशंस जो भी डिजाइन्स में होते हैं, हम हाइफन करके और 1 2 3, सो यू विल फाइंड RP24-1-2। Right. तो कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करने में वो वेरिएशंस के -9-10 तक भी पहुंच जाता है, वो सारे हमारे पास सेव्ड होते हैं। Okay. Okay, that's great. So like also like how, what do you more focus on? Like the design, the durability, the quality, or all three of this? All three, obviously all three. We can't say कि एक चीज दूसरी से ज्यादा important है। Exactly. Everything has to be there. Design has to look good. That's why someone will come and say कि मैं फोटो खींचूं इस चीज के सामने। Right. Again, quality obviously has to be good. Otherwise, no one, कोई क्यों खरीदेगा आपसे? If you're not giving them a good quality for a premium product, then how can you say कि मैं premium हूँ, right? So that's the most important thing. I am taking back my words. Quality is the most important thing. Right. And then durability, of course, you know, market में हमसे ज़्यादा durable किसी के products नहीं है. Okay. Because when you focus on the quality, the durability comes in on its own. अगर हम अच्छी quality देते हैं तो वो products अपने आप लोगों ने 3 seasons, 4 seasons, 5 seasons भी चलाए हुए। Okay. So it all, वो अपने आप सारी चीजें, they all fall into place. Okay, so like is there anything you know like specific material that you use that you feel is कि हाँ ये सबसे different है? Yeah, we use the RSC coating, Okay. which I'll tell you more about when we go upstairs. Okay, sure. Great. ये है हमारे अमित तिवारी जी, हमारे क्वालिटी सुपरवाइजर। तो तिवारी भैया, पहले बताओ आप कितने साल से हमारे साथ में हो? आपके साथ हो गया 2016 से 10 साल से हमारे साथ में। और यहाँ पे आप कैसे क्वालिटी चेक करते हो, उन मशीन्स के बारे में थोड़ा बता दो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सैंपल लेते हैं, वो कंडीशनिंग चैम्बर में रखते हैं। उस सैंपल को हम एज ए फील्ड जो टेस्ट यूज़ होने वाला है उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसको मैच्योर करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम जियो टेक्सटाइल में हम ये वाटर परमेबिलिटी का टेस्ट करते हैं। इसमें वाटर का फ्लो देखते हैं कि उसमें फैब्रिक में से कितना वाटर फ्लो पास हो रहा है। ठीक है। फिर हम इस पे आते हैं, ये हमारी यूटीएम मशीन है, इसमें लॉट ऑफ फंक्शंस हैं कि जैसे अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, CBR पंचर है, टी ट्रेपेजोइडल है और ग्रैब स्ट्रेंथ, ये सब इसमें हम मेजर करते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ है, ये फैब्रिक की रैंडमली लोड पड़ने पे कितना वो वियर कर सकता है, इस चीज़ को हम मेजर करते हैं। अच्छा। ये अब्रेशन टेस्टर है, ये फैब्रिक की साइकिल्स कितनी बार अब्रेशन होने पे उसकी लाइफ साइकिल को कितनी बार घिसना सह सकता है कोई भी फैब्रिक, कितना वियर हो सकता है इसमें। अच्छा। फिर ये हमारा हॉट एयर ओवन है, ये जनरली हम इसमें फाइबर्स के श्रिंकेज को टेस्ट करते हैं। ये हमारा फ्लेमिबिलिटी टेस्टर है कि हमारा जो ये कारपेट है कितना इसमें
फायर का फ्लो रेट है और उसको कितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं उसमें। ये कलर कैबिनेट है। ये कलर कैबिनेट में हम जब 2 या 2 से अधिक फाइबर्स को का कंपोजिशन लेते हैं तो उसके शेड मैचिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कि शेड एकदम हर बार कंसिस्टेंटली मैच होने चाहिए टोन्स। ये हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्टर है। इसमें हम बेसिकली ये यूज होता है एयर फिल्ट्रेशन फैब्रिक्स के लिए। अच्छा, उसमें हम एयर का फ्लो चेक करते हैं कि कितना एयर फ्लो पास हो रहा है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि हम इतने सारे पैरामीटर्स पे अपनी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं और यहाँ हमने अपना लैब सेट किया हुआ है जहाँ पे सारे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं इन सब पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए। तो हमारी क्वालिटी और हमारी रिसोर्सफुलनेस के लिए आप देख सकते हैं ये जो सोफ़ा है ये मेरे दादा दादी के कमरे में था 20 साल पहले और ये आज तक मिंट कंडीशन में है। इससे आप देख सकते हैं हमारी कमिटमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी एंड रिसोर्सफुलनेस। मेरा नाम पंकज सेन है। मैं राजधानी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ मेरा जो काम है ना वो डिस्पैच का और अकाउंटिंग का काम है। और यहाँ का जो हमारा जो स्टाफ है एकदम फ्रेंडली स्टाफ है और हमारा जो फोकस होता है सबसे पहले हमारा फोकस होता है जो क्वालिटी पे होता है। जो क्वालिटी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी के मामले हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और हमारा जो क्वालिटी है वो एकदम प्रीमियम होता है। नील, आप हमें कुछ RSC कोटिंग के बारे में बता रहे थे। जी, तो यहाँ हमारा कोटिंग का प्रोसेस होता है जहाँ हम अपनी RSC कोटिंग को यूज करते हैं। कुछ स्पेशल है वो, आई गेस। वो भी मैं बताता हूँ आपको। ओके। लास्ट स्टेज में आपने देखा था नीचे ऐसे पंचिंग हो जाती है और फेल्ट बन जाती है। राइट। इसे हम फेल्ट बोलते हैं। ओके। तो अभी ये बहुत फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होती है और इसको कारपेट बनाने के लिए फिर यूज होती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस मशीन में हमारी RSC कोटिंग। ओके। RSC कोटिंग स्टैंड्स फॉर राजधानी सीक्रेट कोटिंग। उसके बारे में और नहीं बता सकता हूँ, बट ये हमारी कोटिंग प्रोसेस है। ठीक है। यहाँ से कारपेट जब कोई भी कोट हो जाता है, बेसिकली फेल्ट जब कोट हो जाती है, ओके। तो उस कोटिंग के बाद आप उसको कारपेट कह सकते हैं। ठीक है। तो इस कोटिंग के बाद उसमें एक शक्ति आ जाती है, फर्म हो जाता है और जो आप एक कारपेट की थिकनेस और एक स्ट्रेंथ देखते हैं वो इस कोटिंग की वजह से आती है। ओके। उसके बाद फिर जो कारपेट प्रिंट होने होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए चले जाते हैं। तो व्हाइट कलर के कारपेट्स होते हैं जिन पे प्रिंट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा स्टॉक है। तो ये व्हाइट रोल्स के ऊपर फिर हम प्रिंटिंग करते हैं और बाकी सब कलर्ड, प्लेन कलर्ड और वो वाले कारपेट्स इधर फाइनल प्रोसेस में बनते हैं। ओके, सो लाइक जैसे हमें ब्लैक कारपेट्स देख पा रहे हैं, तो ये पहले से ब्लैक कलर है कि वो कोटिंग की वजह से चेंज हो रहा है सब? तो फाइबर का भी कलर ब्लैक होता है और उसके बाद कोटिंग का भी कलर दिया जाता है। इन पे भी प्रिंटिंग हो जाती है ब्लैक कलर्स पे भी? टेक्निकली प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, मगर अगर आप एक काला चार्ट पेपर लेंगे और उसके ऊपर आप स्केच पेन चलाएंगे तो वो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो वही फंडा है कि उस पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिर हमें मतलब कि ब्लैक कारपेट्स हमें दिख रहे हैं, तो इनका कैसे यूज हो रहा होगा? ये यूजुअली यूज होते हैं स्पीकर्स में, आपने देखा होगा कि फेल्ट लगती है। राइट। कार्स में लगते हैं, कार मैट्स, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। बैग्स भी बनते हैं फेल्ट के, रबर स्टॉपर्स आते हैं फर्नीचर के नीचे। तो फेल्ट आपके आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है। ओके, इट्स लाइक हम ऐसे पहले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बस हमें पता नहीं है अभी, मालूम नहीं होता है। जैकेट्स के अंदर भी ये फाइबर लगता है, अपैरल में भी लगता है हीट के लिए, पिलोस, क्विल्ट्स, कुशन्स। तो बहुत सारे कलर्स होते हैं अलग अलग। स्पेशल कलर्स के भी ऑर्डर्स आते हैं। ओके। काफी लोग जैसे बोलते हैं कि उन्हें लैवेंडर कारपेट चाहिए अपने इवेंट के लिए, राइट। तो फिर लैवेंडर फाइबर और वो स्पेशल कलर मैच करके कोटिंग उसकी सब कुछ बनाना, तो वो सारा प्रोसेस होता है। ओके, ग्रेट। सो लाइक इस कोटिंग के बाद आपने बताया कि प्रिंटिंग होती है। इसके बाद प्रिंटिंग होती है। लाइक प्रिंटिंग के लिए इज इट समथिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी और टेक्निक कुछ? इसको हम कहते हैं डिजिटल प्रिंटिंग या सब्लिमेशन प्रिंटिंग, जो कि बेसिकली आपने वो चीज तो देखा होगा या सुना होगा कि लोग एक टी शर्ट लेके
उसके ऊपर एक बटर पेपर रख के राइट कोई और प्रिंट आउट रख के उसको प्रेस कर सकते हैं, राइट राइट तो फिर वो पेपर से टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। हम्म तो यहाँ पे भी सेम ही फंडा है ओके कि आप पेपर को और कारपेट को बहुत ही गर्म रोलर्स में चलाते हैं, ओके तो फिर पेपर से वो कारपेट के ऊपर प्रिंट ट्रांसफर हो जाता है। ओके वो प्रोसेस आप यहाँ इस मशीन पे देख सकते हैं पूरा। सो इट इज द सेम कि पहले यहाँ पे व्हाइट कारपेट गया, फिर उसके बाद वो पेपर है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो व्हाइट कारपेट्स वहां से यहाँ पर हम लाते हैं हम्म और फिर ये हमारे प्रिंटर्स हैं दो, इनके ऊपर हम अपनी प्रिंटिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से कारपेट फीड हो रहा है, ऊपर से पेपर जा रहा है और ये हीट वाले रोलर्स के बीच में जाके उस पार फिर प्रिंटेड कारपेट आ जाता है। ओके मतलब फाइनल रिजल्ट उसके बाद यहाँ से यहाँ चला एग्जैक्टली तो ये हमारे कारपेट्स के प्रोडक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेज। ओके सो लाइक डू यू हैव एनी मैसेज फॉर योर कस्टमर्स? कस्टमर्स के लिए ये मैसेज है कि बहुत सारी वैरायटी है, आप इन्फॉर्म्ड बने, जागृत जिसे कहते हैं, जागृत ग्राहक बने और आप मांगे कि आपको क्या चाहिए। आप ये मत देखिए कि मार्केट में क्या चीज आपके आसपास है, आप ये देखिए कि क्या चीज सबसे अच्छी है और क्या आप चाहते हैं और वो चीज आप मांगिए। और बनाने वाले बिल्कुल हैं, और क्वालिटी जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज वो होती है। किसी के भी इवेंट्स होते हैं, किसी के भी यहाँ घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी भी है, तो वो बहुत इमोशनल चीजें होती हैं। मेरी सिस्टर की शादी थी कुछ टाइम पहले, तो ऑब्वियसली बहुत इमोशनल चीज होती है। तो आप चाहते हैं कि एक एक चीज उसमें बहुत ज्यादा सोच समझ के बहुत सुंदर तरीके से लगाई जाए। और कारपेट तो आपके किसी भी फंक्शन का फाउंडेशन होता है, किसी भी फंक्शन की नींव होती है। सबसे पहली कदम आपका कारपेट पे ही जाता है। तो जब आपका किसी भी फंक्शन की नींव एकदम मजबूत होगी तो पूरा का पूरा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा। और जो हम देखते हैं उसी से हमारी भावनाएं उसी से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो जैसे ही हम कहीं जाएं और हम देखें बहुत सुंदर डेकोरेशन है, बहुत अच्छे तरीके से कारपेट है वहां पे, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे टेबल्स का लेआउट हो, चाहे वहां पे सर्वर्स हो, कोई वेटर है उनकी यूनिफॉर्म हो, तो हर चीज बहुत अच्छे से डिटेल से सुंदर तरीके से ऐसी लगनी चाहिए कि आपने चुन करके वहां पे लगाई है। इट इज लाइक एन इमोशनल कनेक्ट। एग्जैक्टली ना कि ऐसा कि जो भी था बाजार में आप गए और आप ले आए और बस आपने रख दिया। तो वो बहुत जरूरी है कि आप क्वालिटी को ढूंढें। आप अपने आसपास के दुकान वालों से बोले कि मुझे बढ़िया चाहिए और बढ़िया ढूंढ के दो, जरूर देंगे। हम हैं यहाँ पे सब बनाने के लिए, हम हैं, बस हम वेट कर रहे हैं कि आप लोग आए हमसे मांगे। बिल्कुल, सो लाइक डायरेक्ट कस्टमर्स आपसे कनेक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल फॉर कर एनी सकते कस्टमाइजेशंस एंड ऑल। एग्जैक्टली, और ये हमारी कोशिश है कस्टमर से डायरेक्ट हमारी बातचीत हो जाए, इसलिए हम भी ये सब बना रहे हैं ताकि उनको भी पता चले क्या क्या होता है, क्या क्या बन सकता है, किस तरीके के डिजाइन हैं। इतनी सुंदरता है दुनिया में, तो उनके बेसिस पे, उनसे आधारित हम इतने डिजाइन बनाते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है, आपके पास खाजुराहो के मंदिर है, जनता एलोरा की केव्स हैं। उन सबसे इंस्पायर होकर के हम बहुत सुंदर डिजाइन्स बनाते हैं। तो क्यों ना आप उस ग्रैंडोर को, उस सुंदरता को अपने फंक्शंस में लाएं। राइट, बिल्कुल सही। तो ये मैसेज है हमारा कस्टमर्स को। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल Thank you, टूर। Alice. थैंक यू सो मच।